Hello students, today we will discuss chapter 3 of your book, which is metals and non-metals. So we will try to do this chapter in terms of questions and answers. So first question goes like this: differentiate between metal and non-metal on the basis of their physical properties. Remember, we are going to differentiate them on the basis of physical property, not chemical. So physical properties like their appearance, how heavy they are, how much of mass they carry. So let's start. Metals, they are good conductor of heat and electricity, as we know. For example, you take iron, good conductor of heat and electricity. Then metals are malleable and ductile. What is malleability and ductility, we will discuss later. And the third comes, metals are solid at room temperature, exception mercury. Metals are generally found at in solid form, solid state, and the exception is mercury, which you use in thermometer. It is present in liquid state. So the next point comes, metals have high melting and high boiling point. So this is one of the reason why they are good conductor of heat, because they have high melting point as well as high boiling point. Now the next point, metals are generally hard except sodium and potassium. As you have seen, iron, uh, we call it one of the hardest things, but it is a metal. But there are some exceptions also, like sodium and potassium. You keep them on your palm, आप इसको अपने हाथ पर रखेंगे तो भी ये पिघलना चालू हो जाएंगे at room temperature. So now we will discuss the properties of non-metals. So these are exactly opposite what you have studied in metals. ये जो आपने metal की property पढ़ी उसके एकदम opposite है. They are neither malleable nor ductile, or they don't conduct heat and electricity, have low melting and low boiling point. They are generally soft except diamond. इसमें exception है diamond, which is one of the hardest thing on earth. They may be in solid, liquid or gaseous form at room temperature. मेटल आपका सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होता था, बट नॉन मेटल कैन बी इन एनी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous form. Now we will discuss malleability. Malleability is the ability of metal to be converted into thin sheets. Just remember this keyword, thin sheets. And gold and silver are the most malleable metals. Ability of metal to be drawn in form of thin sheets is known as malleability. Now we will go to ductility. So ductility, the ability of metals to be drawn into thin wires. You remember this keywords, thin wires. And gold is most ductile. 1 gram of gold can be drawn into 2 किलोमीटर लेंथ वायर. 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज सोनोरस. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. जब हम मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम बोलते हैं सोनोरस. एंड नाउ कम्स विद द 3 स्मॉल क्वेश्चंस. नेम मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. कि भाई ये भी एक एक्सेप्शन है, जो है तो मेटल बट पुअर कंडक्टर है. फर्स्ट है आपका लेड, देन कम्स आपका मर्करी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 मेटल्स विच कैन बी कट इजीली बाय नाइफ. दीज आर गैलियम एंड सीजियम. अगेन दे आर वेरी सॉफ्ट, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये हमारे हाथ पर रखते ही ईजिली पिघलना चालू हो जाएंगे. सो नाउ कम्स द फोर्थ, नेम अ नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस. जो नॉन मेटल तो है पर साथ साथ में क्या करता है, लस्ट्रस मीन्स इट रेफर्स टू योर शाइनिंग प्रॉपर्टी, इट शाइन्स. तो आपका आंसर होगा आयोडीन. नाउ लेट्स गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटलॉइड? नेम एनी 4 ऑफ देम. सो मेटलॉइड और कुछ नहीं है, ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. जो भाई कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी दिखाएंगे और कुछ प्रॉपर्टी आपके नॉन मेटल की भी दिखाएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड. सो 4 मेटलॉइड्स के नाम आप देखिए, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक. नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज डन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज डन ऑन वायर्स. सो पीवीसी, इसी को हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं. इट इज़ अ रबर मटेरियल विच इज़ इंसुलेटर, आप जानते ही हैं. सेकेंड, इट प्रिवेंट्स फायर एंड शॉक. अगर कोई दूसरा ह्यूमन उस वायर को टच करेगा, नेकेड वायर को, तो उसे शॉक हो सकता है, और ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट फायर का भी खतरा रह सकता है. तो दोनों ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे किससे, पॉलीविनाइल क्लोराइड से. इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल
टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए बाहर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी इलेक्ट्रिक फ्लो पर कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा, और मॉइस्चर ज़्यादा बाहर रेन हो रहा है आपका तो उससे भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज एंड राइट्स इट्स यूज़। सो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ नहीं है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम्स मीन्स जो अप टू डाउन में अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव और नीचे सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव, ये मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। तो इसका यूज़ है, वी नो दैट विच एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हम इससे ये जान सकते हैं कि हाइड्रोजन भी इसी लिस्ट में आता है, लेकिन हाइड्रोजन से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से कौन कम रिएक्टिव है। सो दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और फिर हमने पता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस। सो ये देख लीजिए ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे का एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव। एक बात ध्यान रखिए, ये जो लास्ट के एलिमेंट्स है ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं, नेटिव फॉर्म, फ्री स्टेट, मतलब आराम से आपको गोल्ड है तो सीधा गोल्ड ही मिलेगा, उसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड अटैच नहीं मिलेगा। एंड क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट। वहीं पर आप देखिए सोडियम, ये फ्री स्टेट में नहीं होगा, ये किस में ऑलवेज फाउंड होगा, बाउंडेड फॉर्म, मतलब कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट या प्रोडक्ट इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम को आप फ्री एनवायरनमेंट में रखेंगे तो ये क्या फायर कैच कर लेंगे इजीली। तो ये आपकी टेबल है जो आपको याद करनी है, और ये उसकी शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं। सो ऐसे आप कीवर्ड्स नोट कीजिए, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, एंड द ट्रिक गोज लाइक दिस। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज जस्ट एन मिक्सचर of two liquids. Just remember this equation, 3:1, 3 mole of HCl and 1 mole of HNO3। जब आप इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को इस प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ एक्वारेजिया। बस ये सिंपली याद रखिए इस इक्वेशन को। और इसका यूज़ क्या होता है, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। मतलब अगर आप सिर्फ HCl को लें या सिर्फ HNO3 को लें तो वो अकेले गोल्ड को डिजॉल्व नहीं कर सकते, बट अगर हम उन्हें इस प्रोपोर्शन में ही मिलाएंगे और फिर गोल्ड और प्लेटिनम को ये आराम से डिजॉल्व हो जाएंगे। इसका कॉमन नेम है रॉयल वाटर। एंड थैंक यू।